مسیح بطور بادشاہ اور ان کا نجات بخش مقصد۔ تعارف۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی تک 11ویں آیت اس لمحے کو بیان کرتی ہے جسے شاہانہ داخلہ یا عام طور پر پام سنڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ وہ صلیبی موت سے پہلے آخری بار یروشلم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس بیان میں علامات، نبوتوں کی تکمیل اور الہامی اہمیت شامل ہیں، جو نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ ان کی آسمان کی بادشاہی کے حقیقی مقصد اور نوعیت کو بھی واضح کرتی ہیں۔ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوتے ہیں، لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، راستے میں کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں بچھاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ہوشنا ابن داؤد کو ہوشنا۔ یہ عمل خداوند یسوع مسیح کی مسیحائی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے حقیقی مقصد کی کچھ سمجھ نہ تھی۔ یہ واقعہ مقدس زکریا نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کی 9ویں آیت سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جو ایک حلیم بادشاہ کے یروشلم میں داخلے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس نبوت کی تکمیل کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے خود کو عوام کے سامنے مسیح موعود کے طور پر ظاہر کیا۔ اس دوران لوگوں کی پکار اور للکار سیاسی آزادی کی امید ظاہر کرتی ہے، جو انسانی توقع اور الہی مقصد کے درمیان تفریق کو واضح کرتی ہے۔ پام سنڈے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری مرحلے کا آغاز تھا، جو جوش و خروش اور مصلوبیت کے لیے سنجیدہ تیاری کو یکجا کرتا ہے۔ یہ ایمانداروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی حقیقی بادشاہی کی نوعیت، اپنی ایمان کی گہرائی اور عاجز و فرمانبردار شاگردی کے لیے اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں، جو خدا کی نجات بخش منصوبے کے مطابق ہونی چاہیے۔ سیاق و سباق۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی تک 11ویں آیت خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے ایک اہم مرحلے پر روشنی ڈالتی ہے، جب وہ آخری بار یروشلم کی جانب گامزن تھے۔ یہ واقعہ عید فصح کے موسم میں پیش آتا ہے، جب ہزاروں ہزار یہودی یروشلم آئے ہوئے تھے تاکہ ملک مصر سے بنی اسرائیل کی نجات کے جشن کو منائیں۔ شہر گنجان سیاسی طور پر کشیدہ تھا اور مسیحی امید سے بھرپور تھا۔ بہت سے یہودی ایک نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو انہیں رومی حکمرانی سے آزاد کرے۔ اس پس منظر میں خداوند یسوع مسیح دانستہ طور پر کوہ زیتون کی طرف سے شہر میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ مسیح امید اور الہی نجات کے ساتھ منسلک مقام تھا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ ایک گدھی اور اس کا بچہ لائیں، جو نبوت کی تکمیل اور منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتا ہے۔ گدھے پر سوار ہونا اور امن بادشاہ کی علامت تھا اور پرانے عہد نامے کے مطابق ایک عاجز اور حلیم حکمران کی نمائندگی کرتا تھا۔ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح شہر میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، راستے پر کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں بچھاتے ہیں۔ یہ عمل جو عام طور پر بادشاہ کو عزت دینے کے لیے مخصوص تھا، ہوشنا یعنی کہ نجات کی التجا اور بادشاہ کی پہچان کی علامت ہے۔ ابن داؤد کا لقب ظاہر کرتا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو مسیح موعود کے طور پر پہچان چکے تھے، تاہم ماحول میں خوشی اور شادمانی بھی موجود تھی اور ساتھ ہی ساتھ غلط فہمی بھی پل رہی تھی۔ لوگ سیاسی آزادی کی توقع رکھتے تھے، جبکہ خداوند یسوع مسیح دکھ اور قربانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ پورا منظر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے آخری مرحلے کا تعارف ہے، جہاں عوامی پذیرائی جلد مخالفت میں بدل جانے کے لیے تیار تھی اور بالآخر خداوند یسوع مسیح کو مصلوبیت کی طرف لے جانے کی کوششوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ پیغام کے 3 بنیادی حصوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، نبوت کی تکمیل کے ذریعے مسیح بادشاہ کا ظہور۔ پام سنڈے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بطور مسیح موعود عوامی اعلان کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس واقعے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اکثر اپنی بادشاہی کا کھلا اعلان نہیں کیا تھا۔
लेकिन यरूशलेम में उनका दाखिला दानिस्ता एतबार से अवामी और अलामती था। उन्होंने अपने शागिर्दों को हिदायत दी कि वो गधी का बच्चा लाएं और उस पर सवार होकर खुदावंद यीशु मसीह शहर में दाखिल हुए, जिससे मुकद्दस जकरिया नबी की मार्फत लिखे गए सहीफे के 9वें बाब की नामी आयत की नबूवत पूरी हुई। ये अमल एक शऊरी और इल्हामी बयान था। खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में दाखिल होकर ऐलान किया कि वो निजात दहिंदा हैं, लेकिन उनकी बादशाही आजिज़ी और हलीमी पर मबनी थी, न कि सियासी ताकत और इक़्तिदार पर। लोग एक कौमी रहनुमा की तवक्को कर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक रूहानी बादशाही जाहिर की जो रास्तबाजी और अमन अमान पर मबनी थी। गधा अमन की अलामत था, जबकि जंगी घोड़े फातेह और जंगजू हुक्मरान के लिए इस्तेमाल होते थे। खुदावंद यीशु मसीह का अमल ये जाहिर करता है कि उनका मकसद सुलह और सलामती पर मबनी था। इसके बरक्स उनका मकसद इक़्तिदार, इनकलाब और दुनियावी हुक्मरानी पर कायम नहीं था। ये लम्हा खुदावंद यीशु मसीह की बाहमी हुक्मरानी और फिरौनी ताकत के मुजाहरे के बजाय बाप की मर्जी की इताअत को जाहिर करता है। आर्टी फ्रांस कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना मुकद्दस जकरिया की नबूवत की तकमील है, और ये नबूवत खुदावंद यीशु मसीह की बनी इसराइल के साथ एक पुरअमन और आजिज बादशाह की शक्ल में जाहिर हुई। क्रेग एस केनर बयान करते हैं कि गधे का इंतखाब बादशाही के तसव्वुरात को इनकलाबी तवक्कुआत से बदलकर कुर्बानी की तरफ माइल कर देता है। एटीराइट कहते हैं ये नबूवती अमल एक अजीम ऐलान था कि खुदावंद यीशु मसीह खुद को बनी इसराइल के हकीकी बादशाह के तौर पर देखते हैं। ये तमाम बयानात जाहिर करते हैं कि पाम संडे न सिर्फ एक जश्न का मौका है, बल्कि इससे बढ़कर एक बड़े मकसद की तकमील है, जो हमें याद दिलाता है कि खुदा की निजात इंसानी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, बल्कि इलाही मंसूबे के मुताबिक जाहिर होती है। दूसरा, आवाम की गलत फहमी। खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने पर लोगों का रद्द अमल उनकी बतौर वसी पहचान और गलत फहमी दोनों को जाहिर करता है। लोग रास्ते में कपड़े और खजूर की डालियां बिछाते हैं, जो बादशाहों और फातेह रहनुमाओं के लिए इज्जत की अलामत होती थी। लोग पुकार उठते हैं, होशना इब्न दाऊद को होशना। ये नारा 118वें ज़बूर में खुदावंद यीशु मसीह की आमद की उम्मीद की अक्कासी करता है। इब्न दाऊद के लक़ब से जाहिर होता है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को मुक़द्दस दाऊद बादशाह की नस्ल से बर्पा होने वाले हकीकी बादशाह के तौर पर पहचान चुके थे, ताहम उनकी समझ सियासी उम्मीदों तक महदूद थी। ज्यादातर लोगों ने रोमी हुक्मरानी से आज़ादी और इसराइल की कौमी बहाली की तवक्को रखी थी। लोगों की हम्दो ताज़ीम पुरजोश थी, लेकिन उनकी तवक्कुआत खुदावंद यीशु मसीह के मकसद से मुताबिकत नहीं रखती थी। पाम संडे इस बात की याद दहानी करवाता है कि मजहबी जोश खरोश और गलत फहमी एक साथ मौजूद हो सकते हैं। खजूर की डालियां फतह की अलामत थी, लेकिन हकीकी फतह रूहानी निजात थी, न कि फौजी और सियासी इक़्तिदार। डी.ए. कार्सन कहते हैं कि अवाम की तारीफ हकीकी मसीही उम्मीद की अक्कासी करती थी, लेकिन उनके दिलों में खुदावंद यीशु मसीह के मकसद की समझ महदूद थी। लियोन मॉरिस लिखते हैं कि होशना निजात की ख्वाहिश जाहिर करता है, लेकिन लोग सियासी हल की उम्मीद के साथ वाबस्ता थे। विलियम लेन कहते हैं कि अवाम का जोश खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की हकीकत की गलत फहमी को छुपा देता है। ये ख्यालात जाहिर करते हैं कि पाम संडे में खुदावंद यीशु मसीह की बतौर मसीह पहचान के साथ साथ गलत फहमी भी शामिल थी। ये ख्यालात हमें अपने ईमान की गहराई पर गौर करने और खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी पैरवी की तरफ बुलाते हैं। तीसरा, शाहाना दाखला और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के अय्याम का आगाज। पाम संडे खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफर का आगाज है, जो उनको बराह रास्त गिरफ्तारी, मुकदमे और सलीबी मौत की तरफ ले जाता है। ये वाकया बज़ाहिर जश्न मालूम होता है, लेकिन इसमें संजीदा पहलू भी मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि शहर यरूशलेम में उनको शदीद रद्द अमल और दुख का सामना करना पड़ेगा। अवाम की खुशी मजहबी और सियासी हुक्काम पर गलबे के साथ मशरूत थी। बादशाही अलामात और कुर्बानी का मकसद दोनों इस लम्हे में मौजूद नजर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही उनकी कुव्वत की बदौलत नहीं, बल्कि उनकी कुर्बानी और मोहब्बत के जरिए कायम होती है। ये वाकया ईद फसा के दौरान वकूअ पज़ीर हुआ,
जो कुर्बानी के जरिए निजात की याद दिलाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हकीकी फसा का बर्रा है, जिनकी मौत निजात लाती है, और खजूर की डालियों से ढका हुआ रास्ता सलीब की तरफ ले जाने वाला रास्ता ठहरता है। जॉन स्टॉट कहते हैं कि शहाना दाखिले के वाक्य को सलीब के तनाजुर में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने निजात की सरंजामदही के लिए यरूशलेम में दाखिल होना था। एफ ब्रूस बयान करते हैं कि शहाना दाखिले की बादशाही अलामत खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की तरफ इशारा करती है, जहां हकीकी बादशाही और निजात दहिंदा की हकीकत जाहिर होती है। हारमन रेडरबॉस कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखिला उनके मकसद के आखिरी मरहले का आगाज है, जो कुर्बानी पर खत्म होता है। ये अल्फाज वाज़िया करते हैं कि पाम संडे सिर्फ खुशी का मौका नहीं, बल्कि निजात के मकसद की तैयारी है, और इस दिन की मुनासबत के मुताबिक हमें हकीकी ईमान और खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल पैरवी का मुजाहरा करना चाहिए। अहद अतीक के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली ता 11वीं आयत गहरे तौर पर अहद अतीक की नबूवतों, अलामतों और इसराइली रिवायात से वाबस्ता है। सबसे वाज़िया ताल्लुक मुक़द्दस ज़करिया नबी के सहीफे के 9वें बाब की 9वीं आयत की तकमील है, जहाँ एक बादशाह की पेशनगोई की गई है जो हलीमी इख्तियार करके गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होगा। खुदावंद यीशु मसीह का सवारी के लिए गधे का इंतखाब करना जाहिर करता है कि उनका दाखिला इत्तफाकी नहीं था, बल्कि मसीहाई नबूवत की तकमील था। इससे वाज़ेह होता है कि वो इसराइल के मौजूदा बादशाह हैं। ये मंजर अहद कदीम में पुरअमन बादशाहत के तस्वुर से भी जाहिर होता है। सलातीन की पहली किताब उसके पहले बाब के 33वीं और 40वीं आयत में सुलेमान बादशाह अपने बाप दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार होकर शाही तख्त पर जुलूस करने निकलते हैं। सो ये वाक़या जानशीनी और पुरअमन हुक्मरानी की अलामत था। खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखिला इसी शाही नमूने की बाज़गश्त है और उन्हें हकीकी इब्न दाऊद के तौर पर पेश करता है। हजूम के अमाल भी अहद कदीम की रिवायात की अक्कासी करते हैं। बादशाह के आगे कपड़े बिछाना भी बनी इसराइल की एक रिवायत थी, जिसका हवाला हमें सलातीन की दूसरी किताब और उसके 9वें बाब की 13वीं आयत में मिलता है, जहां याहू बादशाह की ताजपोशी की जाती है, जहां लोगों ने इताअत और वफादारी के निशान के तौर पर अपने कपड़े बिछाए। इस तरह खजूर की डालियां इस्तेमाल करना फतह की तकरीबात की अलामत है, जैसा कि अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 40वीं आयत में बयान किया गया है। और बाद में यहूदी कौम जश्न के मौका पर खजूर की डालियां इस्तेमाल करती रही। लोगों का होशना का नारा लगाना 118वें ज़बूर की 25वीं और 26वीं आयत से लिया गया है, जो ज़ियारत और मसीहाई उम्मीद से मुतल्लिक एक ज़बूर है। शहाना दाखिले का वाक़या इन तमाम अहद कदीम के हवाला जात के साथ ताल्लुक रखता है, यहाँ तक कि यही वाक़या बनी इसराइल की नबूवती उम्मीद की तकमील ठहरा। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में इब्न दाऊद की हैसियत से एक बादशाह के तौर पर दाखिल हुए और वो निजात लाए, जिसकी तवक्को पूरे अहद कदीम में की जाती रही थी। अमली इतलाक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली तक 11वीं आयत इस बात के लिए इलाही रहनुमाई फराहम करती है कि ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर कैसे कबूल करना चाहिए। सबसे पहले ये पैगाम हमें खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की नौयत को पहचानने की दावत देता है। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में फिरोतनी और हलीमी के साथ दाखिल हुए। उन्होंने जंगी घोड़े के बजाय गधे को सवारी के लिए मुंतखब किया, जिससे जाहिर होता है कि उनकी बादशाही सियासी इक़्तिदार या दुनियावी इख्तियार पर मबनी नहीं थी। आज बहुत सारे लोग तवक्को करते हैं कि खुदा फौरन मसाइल हल करे, कामयाबी अता फरमाए या मुश्किलात दूर करे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरजीह हमारे दिलों की तब्दीली है। खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर कबूल करना फरोतनी, खुद सपुर्दगी और उनकी मर्जी की पैरवी करने की आमादगी का तकाजा करता है, चाहे खुदा की मर्जी हमारी जाती ख्वाहिशात को चैलेंज ही क्यों न कर रही हो। हजूम का शहाना दाखिले पर रद्द अमल ज़ाहिरी और हकीकी ईमान के दरमियान फ़र्क को नुमायां करता है।
लोगों ने होशाना के नारों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और ताज़ीम की और उनके रास्ते में खजूर की डालियां बिछाई। लेकिन वो हजूम खुदावंद यीशु मसीह के मकसद को दुरुस्त अंदाज में ना समझ सका। उस हजूम का जोशो खरोश वक्ती था और सियासी निजात दहिंदा की तवक्कुआत पर मबनी था। ये हमें अपनी इबादत के अंदाज का जायजा लेने की दावत देता है। क्या हमारी इबादत मुस्तकिल हैं या सिर्फ हम उस वक्त इबादत सरंजाम देते हैं जब हमें जाती आराम या बरकत मिलती है? सच्ची शागिर्दी उस वक्त भी वफादार रहती है जब खुदा की इलाही और उमीक मर्जी हमारी तवक्कुआत के बरखिलाफ होती है। बिलाखिर शाहाना दाखला सलीब की तरफ इशारा करता है। खुदावंद यीशु मसीह की फतह कुर्बानी और फरमाबरदारी के जरिए जाहिर होती है। ईमानदारों को मोहब्बत और खिदमत के इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए बुलाया जाता है और हमें अपने अल्फाज और अमाल दोनों के जरिए अपनी वफादारी जाहिर करनी चाहिए। यह हवाला हमें मुकम्मल तौर पर फरमाबरदार रहने, खुदा के मंसूबे पर भरोसा रखने और फरोतन मगर रूहानी गलबा हासिल करने वाले बादशाह के वफादार पैरोकारों के तौर पर जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है।